Hello students, today the chapter is life processes and the topics which will be covered in this chapter are nutrition, respiration, transportation and excretion. These four topics will be covered in this chapter. The referencing is done with Ncert. Now coming to the life processes. What do you mean by life processes? क्या मतलब है life process का? Process मतलब कोई भी चीज चल रही है और कोई भी चीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. Whatever we do, whether we are standing, we are walking, we are watching TV, listening to music, even when we are sleeping, all the things, the above mentioned things, all these things require energy. And from being the toddler टू बीइंग एन एडल्ट, एनर्जी चाहिए हर चीज को ग्रो करने के लिए. ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी चाहिए, सेल्स को डिवाइड करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. ऑल दीज थिंग्स, ऑल द एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. जो हम खाना खाते हैं, हर ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज अ मैमल और इट इज अ ह्यूमन बीइंग, मैमल्स ह्यूमन बीइंग में ही आते, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, सब में हमें चाहिए and food चाहिए to continue our life processes, to continue the growth. So what is nutrition? The food that we eat, where does it come from? Two modes of nutrition are there: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Auto का मतलब क्या हुआ? To keep the difference, remembering the difference between autotrophic and heterotrophic. Autotrophic का मतलब, auto का मतलब क्या हुआ? Self. कोई भी काम जो हम खुद करते हैं, that is autotrophic mode of nutrition. Self, auto means self, trophic मतलब nutrition. जो plants हैं, for example, they are autotrophic mode of nutrition, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे dependent नहीं है, that are autotrophic mode of nutrition, which make their own food by the help of sunlight. The process of photosynthesis is an autotrophic mode of nutrition. And hetero मतलब जो दूसरों पे dependent है, ना कि खुद पे dependent है, which do not make their own food, like animals and fungi. मतलब हम लोग जो हैं, we are the people, the human beings, the animals, fungi, these are all dependent upon plants for the food. So they are heterotrophic. So the difference between autotrophic and heterotrophic, auto से आप याद रखते हैं self, auto मतलब self, खुद खाना बनाना. Next is mode of nutrition, heterotrophic and autotrophic. By the photosynthesis process, through the help of sunlight, carbon dioxide and water, we get food and the release of oxygen. ये photosynthetic process है, and these all products which are present here. बहुत सारे और चीजें भी होती हैं, but these are some of them are shown here. These all are heterotrophic mode of nutrition. Hetero दूसरों पे dependent रहना. Photosynthesis is just done by autotrophs. Food made is glucose. जो प्राइमरी मेजर फूड होता है, सुक्रोज भी बनता है, लेकिन मेजर अमाउंट में जो फूड बन रहा है, दैट इज ग्लूकोज, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा फूड लाइक द कैरेट, रेडिश, कुछ भी जो अंडरग्राउंड फूड्स हैं, रूट्स में जाकर स्टोर हो रहे हैं, कुछ लीव्स में जाकर स्टोर होते हैं. सो द एक्स्ट्रा फूड विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और ह्यूमन बींग्स में भी यही है, जितना हमने खाना खा लिया और बाकी जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, वो सब फॉर्म्स जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है GLYCOGEN, ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में स्टोर्ड होता है और प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में शो होता है, स्टोर्ड होता है. रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. This is a reaction, carbon dioxide plus water give sugar, that is the major glucose, plus water, and oxygen is evolved जो हमें ऑक्सीजन मिलता है. The three important things that should be kept in mind for the paper point of view, कि आपको ये तीन चीजें, जो तीन पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं, you should remember it. First point is absorption of
light energy by chlorophyll. We all know that chlorophyll is a green pigment which is present in leaves. तो उनका काम क्या है? लाइट एनर्जी सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और आगे पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करना. अगर क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय chlorophyll. Second is conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules in hydrogen and oxygen. जो ये water molecule है, it gets split out into H2 hydrogen. ये जो O है, ये हमने यहाँ से लिया है और what oxygen में split हो जाता है और light energy gets converted to chemical energy. Reduction of carbon dioxide to carbohydrate. जो CO2 है, वो this glucose में convert हो जाता है. In the first chapter, it is written that reduction is removal of oxygen and addition of hydrogen. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन जो ये था ऑक्सीजन ये रिमूव हो रहा है. मैं आपको और इजीली तरीके से बताती हूँ रिडक्शन का मतलब क्या हुआ. C के पास O2 है इन द रिएक्टेंट साइड और यहाँ पे C के पास H है, तो मतलब O हट गया और H आ गया. ये जो O है ये वाला O है, O हट गया और H आ गया, मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड take place. So these are the three important things in the photosynthesis that occur and you should remember it. Next is stomata. These are the tiny pores which are present at the undersurface of the leaf called as stomata. The basic purpose of the stomata is exchange of gases. CO2 and O2 are the major gases which are exchanged by the stomata. Photosynthesis में पता है CO2 अंदर आता है और O2 बाहर जाता है. तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज है ये स्टोमेटा पोर से ही होता है और थ्रू रूट्स, लीव्स, स्टेम इन सब से भी गैसेस एक्सचेंज होता है. लेकिन स्टोमेटा का एक और फंक्शन है दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट. Water loss. काफी 90% of the water is lost by the photosynthesis reaction which is done by stomata और उन्हीं को protect करने के लिए ताकि ज्यादा amount में water loss ना हो that is done by guard cells जो guard करते हैं stomata को for their opening and closing. Guard cells swell when water flows into them. अब ये जो part है इसमें क्या है water अंदर आया ये part में, तो water अंदर आया मतलब भर गया, उस स्वेल्व हो गया. कोई भी चीज में जिसमें पानी अंदर आता है वो स्वेल्व हो जाएगा, तो इसमें पानी अंदर आया तो ये स्वेल्व हो गया. दैट्स व्हाई स्टोमेटा गेट ओपन. और पानी जब बाहर निकल गया तो कोई भी चीज पानी से बाहर निकल गई तो वो श्रिंक हो जाएगी. तो व्हेन द वाटर कम्स आउट इट गेट्स श्रंक एंड द स्टोमेटा गेट क्लोज. तो ये रिलेशनशिप है गार्ड सेल और स्टोमेटा का. जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है, जब वाटर अंदर आता है तो गार्ड सेल्स गेट स्वेल्ड अप, सो because of that response stomata get open, and when the water goes out the stomata guard cells get shrunken up and the stomata get closed. So इस चीजों के थ्रू गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट करके रखते हैं स्टोमेटा को ताकि ज्यादा अमाउंट में वाटर लॉस ना हो. Next is heterotrophic mode of nutrition, different ways by which animal can take their food. Maybe by the food is stationary or moving. अब herbivores में for example इसमें लिखा है herbivores में और carnivores में the source of the food is different. कुछ चीजों में food जो है स्टेशनरी होगा और कुछ में मोबाइल होगा. मोबाइल मतलब मूविंग है. इन द केस ऑफ हर्बीवोर्स क्या ग्रास खाते हैं, तो दैट इज बेसिकली अ ग्रास, तो वो क्या है स्टेशनरी है. तो और कार्निवोर्स क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं. तो उनके लिए जो दूसरा एनिमल है वो क्या है, सोर्स ऑफ फूड है, तो वो क्या हो गया हमारा मोबाइल. Another example is some animals break their food outside and then absorb it like bread mold, yeast and mushroom.
हम जो करते हैं वो हम खाना अंदर लेते हैं एंड देन वी ब्रेक इट डाउन सो दैट द फर्दर प्रोसेस कैन गो ऑन। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं लाइक ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम, ये एनिमल्स क्या करते हैं, पहले ब्रेक करते हैं फूड आउटसाइड एंड देन दे एब्जॉर्ब इट, एंड सम थ्रू parasitic mode. Parasites are the one like लाइज और कुछ टिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो होस्ट पर अपना खाना लेते हैं, अपना अडेप्ट करते हैं, जो होस्ट खाना खा रहा है उसी को लेंगे स्टिक होकर। लाइक जो जुएं हैं होती हैं वो क्या है, देयर आर पैरासिटिक मोड। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग वे है, तो इनका भी है, ये होस्ट से पूरा खाना लेते हैं और अपना प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं। सो दिस इज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट वेज से खाना लेता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म टेक देयर न्यूट्रिशन? अमीबा है, वो फूड अपना एनगल्फ अंदर कैसे करता है? सो द अमीबा, द unicellular organism take their food through a finger like projection which is called as pseudopodia. Here you can see that this is a food particle, ये food है। तो finger like projection, जो ये जो part है, this part is a finger like projection। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू फूड अंदर आया, डाइजेशन हो गई, दैट ये फूड पार्टिकल है, ये जो है ये फूड पार्टिकल है और ये अंदर आ गया तो डाइजेशन हो गई। एब्जॉर्प्शन, जो फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट पूरे बॉडी पार्ट में जब पूरे इस ऑर्गेनिज्म में जाएगा, एसिमिलेशन प्रॉपरली अच्छे से पूरा चला गया, एंड इजेशन मतलब जो वैक्यूल्स में चला गया। अब जो पार्ट नहीं चाहिए, जो फूड का पार्ट नहीं चाहिए, it will get ejected out. So this is the process by which amoeba can take food, the nutrition way by which amoeba can take food. Another is paramecium. How does paramecium take their food? Paramecium में these are the hair like structures which are present in the paramecium. पूरी बॉडी में आप देख सकते हैं, ये पूरी बॉडी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज सीलिया। ये क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, ये अब सीलिया के थ्रू ही चलते हैं, तो जब चलेंगे तो ये फूड भी अपना ग्रास्प करते जाएंगे, फूड भी अपना अंदर लेते जाएंगे। एंड हियर यू कैन सी द एनल पोर, द साइटोड्रग एनल पोर। और इसके थ्रू जब फूड है, ये पूरा सीलिया के मूवमेंट के थ्रू फूड जो है पूरा ये अंदर आ गया, ये फूड वैक्यूल्स में चला गया। जो फूड नहीं चाहिए इट विल गेट इजेक्टेड आउट, ये सारा निकल गया थ्रू anal pore. So this is the movement by which the paramecium can take food. The paramecium is a single unicellular organism which take food with the help of cilia. So you have to remember one thing, the name cilia, और अमीबा में क्या था, सूडोपोडिया, और यहाँ पर पैरामीशियम में क्या हो गया हमारा, सीलिया। Now in the next very important process which comes into picture is nutrition in human being. हमने फूड लिया, तो वो जो पूरा फूड है, जो वो पूरा प्रोसेस है, वो कैसे हुआ, कैसे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। हम बोलते हैं डाइजेशन, क्या मतलब है उस डाइजेशन का? डाइजेशन इज simple term which is used to break down a complex food molecule into a simpler one. तो digestion है। अब elementary canal, what do you mean by elementary canal? elementary canal क्या मतलब हुआ? अब ये जो पूरी आप देख रहे हैं, from the mouth start covering up to the anus, ये पूरा, this whole tube which runs from the mouth covering up to anus is called as alimentary canal. इस alimentary canal में esophagus present है, stomach, ये हमारा liver है, this is stomach, J-shaped stomach, then this is a pancreas, small intestine, large intestine, and then anus. This whole tube which helps in the digestion of the food is called as alimentary canal, where the food is eaten up and it is undergo various steps जो आप अभी पढ़ेंगे। तो this whole tube is called as alimentary canal. So the first step where the digestion occurs is that food is broken down into the smaller particles. Why it is broken down? So that it can be digested easily, so that when it moves down to the stomach or the small intestine, it can be very digested easily. Moreover, it is also crushed by teeth, so that
food can properly broken down. What happens when we eat? It becomes watery. How? जब भी आप खाना खाते हैं या नॉर्मली हमारा जो माउथ है वो ऑलरेडी वाटरी होता है बिकॉज ऑफ द सिक्रीशंस विच आर प्रेजेंट. वाटरी सब्सटेंस हमारे माउथ में प्रेजेंट रहता है. फूड जो है वो वाटरी सिक्रीशंस के साथ जब मिक्स होता है तो वो इजीली फूड ईसोफेगस में फूड पाइप में पास डाउन कर जाता है. अगर फूड में के साथ ये वाटरी सिक्रीशंस ना प्रेजेंट हो तो पास डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तभी ये वाटरी सिक्रीशंस हमारे माउथ में हमेशा रहती हैं. हम कुछ भी खाते हैं वो वाटरी सिक्रीशंस हमेशा रहती हैं. तो जो वाटरी सिक्रीशंस प्रेजेंट है हमारे माउथ में दैट आर कॉल्ड एज द वाटरी सिक्रीशन इज कॉल्ड एज सलाइवा which is secreted from the salivary glands. हर एक organ में whether it is stomach, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोई भी पार्ट है, माउथ है, हर एक पार्ट में क्या है? ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो सिक्रीट करते हैं कुछ ना कुछ ताकि वो एंजाइम्स आगे सिक्रीट कर सके. अब एंजाइम्स क्या चीज है? कोई भी रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए, वो रिएक्शन जल्दी से जल्दी हो सके, उन चीजों को, उन कैटलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? एंजाइम्स. अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स ना होते तो कम से कम 1 साल लग सकता था पूरी डाइजेशन को कंप्लीट होने में. जो डाइजेशन हमारी 5-6 घंटे में होती है, अगर ये एंजाइम्स ना प्रेजेंट होते तो बहुत टाइम लगता डाइजेशन में. सो एंजाइम्स are a substance that increases the reaction, that causes the reaction to move in a forward direction. Saliva contains an enzymes. Salivary gland से saliva निकला. Saliva enzymes secrete करता है which is called as salivary amylase. It is called as salivary amylase so that properly break down हो सके पूरे food particles का. तो ये enzymes काम करते हैं. And the next process where the food goes down is called as esophagus. जो food pipe, just like this is a food pipe. माउथ से फूड पाइप में गया, फूड पाइप के बाद वो स्टमक में जाएगा. तो ईसोफेगस इज अ मस्कुलर पाइप जिनमें कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है. पेरिस्टालिक मूवमेंट जिसे बोलते हैं, पेरिस्टालिक मूवमेंट, हियर इट इज रिटन पेरिस्टालिक मूवमेंट. इनमें क्या होता है? लाइक द मूवमेंट, जैसे फूड अब अंदर गया तो फूड क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड. तो ये पूरा प्रोसेस फूड का होगा जो फूड को पुश करेगा स्टमक में जाने के लिए. तो लाइक दिस कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है. मस्कुलर ऑर्गन है तो दैट फूड कैन बी पुश डाउन इजीली इनटू द स्टमक. सो दिस वाज द होल प्रोसेस व्हिच अकर्स इन द माउथ. पहले salivary glands से क्या निकला? saliva, the watery secretions which are present in the mouth. Then from the salivary glands enzyme which is called as salivary amylase वो हम निकला. उसके बाद वो पूरा फूड को ब्रोक कर दिया अच्छे से प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ टंग च्यूइंग जो हम कर रहे हैं उसमें. द नेक्स्ट प्रोसेस इज इट गोज टू द ईसोफेगस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप, देन टू द स्टमक. और ईसोफेगस में क्या हो रहा है? पेरिस्टालिक मूवमेंट. ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब where the food is pushed down to the stomach. Now the food enters the stomach and the wall of stomach also have some digestive juices ताकि और भी enzyme secrete हो सके और food properly break down हो सके. Because food में fats, carbohydrates and फैट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो हर एक डाइजेशन में, हर एक पार्ट को डाइजेस्ट करने में अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग ग्लैंड्स सिक्रीट होते हैं. सो द फर्दर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन all will be discussed. Digestion in stomach, which is done by gastric glands. As I have told earlier that हर एक organ में glands होते हैं. तो stomach में जो है वो है gastric glands which is present in the wall of stomach. What it releases? It releases HCl, also that is hydrochloric acid. What does HCl cause? It causes the action of pepsin. हम आगे pepsin पढ़ेंगे. pepsin का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? जब कोई भी फूड लेते हैं उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं. तो इन 3 चीज़ों को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड से जो निकलते हैं. तो पेप्सिन इज वन ऑफ द एंजाइम यू कैन से जो
एक्ट करता है प्रोटीन्स पे, ब्रेक डाउन करता है जो प्रोटीन्स का, वो होता है पेप्सिन। और पेप्सिन कहाँ से निकला है स्टमक में? थ्रू HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl अगर हम बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में जरा सा एक ड्रॉप भी अगर हमारी बॉडी में चला गया, स्किन पे टच हो गया, सो इट कैन कॉज बर्निंग। सो सोचो अगर हमारे स्टमक में, स्टमक की जो ये लाइनिंग है, हियर यू कैन सी द स्टमक, ये जो स्टमक की पूरी लाइनिंग है, अगर यहाँ पे HCl चला गया, सो व्हाट कैन इट कॉज, how much damaging effect it can cause to our stomach. So how it is protected? हमारे अगर स्किन ही इतना प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हमें, तो अंदर तो पूरा मस्कुलर सिस्टम है, how it can be protected by it? So it is protected by the lining which is called as mucus, the same mucus which is present in our nose, वही mucus हमारे पूरे स्टमक की कवरिंग करता है। इट इज वेरी थिक, तो पूरा कम से कम इतना थिक, जितना ग्रीन ये मैंने लाइनिंग्स दिखाई हैं उतना थिक कम से कम ये पूरा म्यूकस की लाइनिंग होती है। लाइक हियर इट इज शोन, ये पूरा जो है ये म्यूकस की लाइनिंग है, पूरी कवरिंग है, काफी थिक लाइनिंग होती है इन द वॉल ऑफ द स्टमक, जो म्यूकस कवर करके रखता है ताकि HCl जितना भी सिक्रीट हो जाए स्टमक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये पूरा। और आपने एसिडिटी का नाम भी सुना होगा। एसिडिटी क्या होती है? जब हम कोई एसिडिक फूड खा लेते हैं, एसिडिक मतलब जिसमें बहुत ज्यादा तीखा, लेमन ज्यादा डला हुआ, लेमन इज नथिंग बट एन एसिड, जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होगा, अब वो HCl, ऑलरेडी हमारे स्टमक में बहुत HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अब अगर वो हमारे स्टमक में ऑलरेडी एसिड है और एसिडिक हो गया, सो इट विल कॉज इरप्शन और इरोड द लाइनिंग ऑफ द म्यूकस। ये पूरी लाइनिंग जो है म्यूकस की इरोड करके पूरा यहाँ तक जो अंदर तक वॉल ऑफ लाइनिंग तक चला जाएगा, और तभी हमें एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, बर्निंग सेंसेशंस हमें प्रोड्यूस होती हैं। इसी का रीजन है एसिडिटी का, कि एसिड जो है वो पूरी म्यूकस को ब्रेक करके पूरी लाइनिंग ऑफ स्टमक में चला जाता है। सो दैट्स व्हाई वी टेक इनो, दैट इज अ बेकिंग पाउडर। वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब इफेक्ट बैलेंस कर देगा ताकि हमें ज्यादा एसिडिक जो एसिडिटी नहीं फील होगी। So this is about digestion in the stomach. The next step is, अब food जो था पहले mouth में गया, then it travels to esophagus, then to stomach, and then it ultimately comes into the small intestine. Small intestine is one of the major part where most of the digestion is done. Absorption is done. Food जो है properly absorbed होता है, तो small intestine is a very important part. From stomach, it enters small intestine by sphincter. Now, in the previous diagram, I have shown the stomach is a J shape. इस टाइप का स्टमक है, और ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी कुछ ऐसी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, सो देयर इज अ स्फिंक्टर। ये जो पार्ट है इसमें फूड पुश होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर। Here it is written, this is called as sphincter। तो बॉडी में पूरा चला जाता है अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled. Why it is coiled? So that it covers up the space. Absorption मेजर पार्ट है, तो of course सी बात है स्पेस भी ज्यादा चाहिए होगा, तो to cover up the space it is highly coiled. Now herbivores have longer intestine and carnivores have shorter intestine. The question is, why does this happen? Why? Herbivores ग्रास खाते हैं, तो उनमें जो डाइजेशन है वो बहुत, मतलब ग्रास को ब्रेक डाउन करने में काफी टाइम लगता है, तभी उनमें जो लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफी बड़ा है। कार्निवोर्स एज कम्पेयर टू द कार्निवोर्स, मीट है, मीट बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो तभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत छोटी होती है कार्निवोर्स में, हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ अ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, protein and fats। I have told earlier कि बहुत important site है। The secretions are done from liver and pancreas. Now here was shown that this is stomach. This is liver. ये liver है। This is pancreas, और उसके नीचे क्या है हमारा? Small intestine.
होप यू कैन अंडरस्टैंड द डायग्राम। तो जो सिक्रीशंस हैं डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में करने के लिए, वो लिवर में से और पैनक्रियाज में से आता है। जो एंजाइम्स हैं, कोई भी एंजाइम्स चाहिए डाइजेशन के लिए, वो सब कहाँ से आते हैं? पैनक्रियाज एंड लिवर। This is the complete step of digestion. The food from the stomach is acidic. तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, उसको अल्कलाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टमक में और हमारा HCl से बचने के लिए हमारी म्यूकस लाइनिंग थी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई लाइनिंग नहीं है ताकि वो एसिडिक से बच सके। सो पैनक्रिया से एंजाइम सिक्रीट होते हैं विच इज कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। एंजाइम सिक्रीट होते हैं पैनक्रियाज से। वो क्या करते हैं? वो एसिडिक जो फूड था उसको क्या कर देंगे? अल्कलाइन, मतलब ताकि वो ज्यादा, अब एसिडिक कम है, अब ज्यादा एसिडिक वो नहीं है। अब फैट की डाइजेशन के लिए फैट इजीली ब्रोक नहीं हो सकते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो है वो इजीली ब्रोक हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन जो फैट्स हैं दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इजीली। So it is done through bile salts which is called as bile salt, जो कहाँ से secrete होते हैं? liver से। So what it does, it causes emulsification of fat, that is breaking down of large fat globules into the smaller ones, that is called as emulsification of fats. So bile salts थे secrete हुए कहाँ से? liver से, तो ये break down कर देंगे fat globules को। Now pancreas also secretes some pancreatic juice। एक तो पैनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट कर रहे थे, नाउ नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक जूस कॉल्ड एज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। वो क्या करते हैं? ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर इमल्सिफाइड फैट, और ब्रेक डाउन फैट्स को करने के लिए लाइपेज यूज होते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस है कहाँ से सीक्रेट हो रहे हैं? पैनक्रियाज से। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी कुछ जूसेस सीक्रेट करता है, that is called as intestinal juices, which convert proteins into amino acid. Amino acid is another shorter version of proteins. Proteins और ज़्यादा break down होते हैं, called as amino acid. Now complex carbohydrates are converted into glucose. Simpler form में सब convert हो रहे हैं। Complex form था protein, simpler form क्या हो गया? amino acid. Complex form था carbohydrate, तो simpler form क्या होगा? glucose. Complex form था fats, तो simpler form क्या हो गया? ग्लिसरॉल। जो इंटेस्टाइनल जूसेस थे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहे थे, तो ये चीजों में वो और ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स वर सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियास, liver secretes bile salt that causes emulsification of fat, that is breakdown of fat globules, larger fat globules into smaller ones, and the pancreatic juice that are secreted from pancreas secretes trypsin and lipase that cause breaking of protein and fats respectively. So this was about digestion. Now next is absorption in the small intestine. Absorption in the small intestine is done by villi, a small finger-like projection present the increase the surface area. ये जो आप देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये इंटेस्टाइन था, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। अब फूड पार्टिकल अंदर आया, फूड पार्टिकल अंदर आया तो प्रॉपरली ये अंदर जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ताकि ये डिफरेंट प्लेसेस में जाएगा फॉर देयर ग्रोथ। जिस बॉडी को ग्रोथ चाहिए वो प्रोटीन लेगा, जिस बॉडी को शुगर चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट लेगा, फैट जिस हर जगह ऑर्गन में चाहिए वो फैट देगा। सो द कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज डन विद द हेल्प ऑफ विलाई। पूरे इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली होती हैं, जो एब्जॉर्ब करती हैं फूड को। मेजर पार्ट, दैट्स व्हाई द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज अ मेजर पार्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्यों एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा है? विलाई की वजह से हो रहा है। अगर विलाई नहीं होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही विलाई प्रेजेंट होता है, अगर और जगह पर होता तो ऑफ कोर्स सी बात है एब्जॉर्प्शन होता, लेकिन और कहीं नहीं होता है। अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट टू लार्ज इंटेस्टाइन and then through anus by anal sphincter. लार्ज इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब फूड सारा जो नहीं चाहिए वो चला गया, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी होता है। एक्सेस वाटर हमारी बॉडी में लॉस ना हो, ताकि वो पूरा बाकी जितना भी वाटर चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेता है लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन द
excreted, that the food which the body does not want is excreted out through anus by anal sphincter. The sphincter which is present between stomach and small intestine, the just a similar type of a sphincter is also present in large intestine and anus. So this is just a sum up to revise the complete digestion. माउथ में क्या था, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो क्या सीक्रेट कर रहे थे, सलाइवा, देन सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा से सीक्रेट हुआ, जो पूरा च्यूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज डन. नाउ नेक्स्ट इज द फूड था माउथ से, वो कहाँ गया, ईसोफेगस में. ईसोफेगस से क्या हुआ, पेरिस्टालिक मूवमेंट, जो एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन हो रहा था. नेक्स्ट इज डन इन द स्टमक, जो स्टमक से फूड निकला, स्टमक में गया. गैस्ट्रिक जूसेस थे, पेप्सिन विच ब्रेक डाउन प्रोटीन्स, कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, HCl से. HCl क्या कर रहा था, पेप्सिन सीक्रेट कर रहा था, और HCl से बचने के लिए क्या प्रेजेंट था, स्टमक में म्यूकस. नाउ द नेक्स्ट इज द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर क्या कर रहा था, सीक्रेट बाइल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और पैनक्रियास क्या कर रहे थे, सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूसेस मेनली ट्रिप्सिन एंड लाइपेज. ट्रिप्सिन क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन कर रहा था प्रोटीन्स को, और लाइपेज क्या कर रहा था, ब्रेक डाउन कर रहा था फैट्स को. इंटेस्टाइनल एंजाइम विच वर सीक्रेटेड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ ब्रेक डाउन कर रहा था कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में. दीज ऑल वर डिस्कस्ड अर्लियर, इट इज जस्ट अ सम अप, ताकि आपको एक प्रोसेस रहे कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, कौन सा एंजाइम कहाँ पर एक्ट कर रहा है, कौन सा ग्लैंड कहाँ पर एक्ट कर रहा है. द नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में अनएब्जॉर्ब फूड जो था चला गया, एंड इट एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर, देन थ्रू रेक्टम एंड देन थ्रू एनस, हेल्प इन इजेशन, दैट इज एक्सक्रीटेड आउट. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये एनस में गया, तो ये जो एनस में था वो एनल स्फिंक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, so that it can be excreted out. So this whole process अगर आप अभी पढ़ रहे हैं so it may be complicated, क्योंकि enzymes नाम करने याद कर रखने हैं, different glands present है माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, so उन सब चीज़ों को याद रखना है. So it is a cumbersome response, it is a cumbersome thing to do, but if you can do it efficiently, if you can memorize it, अगर आप इसको रोज थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड द मेजर प्रोसेस विच यू नीड टू रिवाइज, विच यू नीड टू हैव अ लुक अपॉन, इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो प्रोसेस है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि इसी में बहुत एंजाइम्स हैं, बहुत, क्योंकि लिवर से भी पैनक्रियास से भी हर एक चीज़ आ रही है, तो इट इज़ अ वेरी कम्बरसम थिंग टू डू. सो इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए आपको उसको बार बार कम से कम रिवाइज करना पड़ेगा. पूरा ये जो समरी है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको इजीली अच्छे से पूरा प्रोसेस आपके एक दिमाग में फिट हो जाए कि हाँ ये प्रोसेस है, इसके बाद ये स्टेप्स आते हैं. एंड जैसे डायग्राम इट इज शोन अगेन, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्योंकि अगर लेबल डायग्राम्स पे भी अगर ये आएगा तो यू कैन आंसर इट वेरी इजीली एंड वेरी नाइसली. So this was all about the nutrition. Now next we are going to study about respiration, transportation and excretion. तो वो तीन topics हैं which will be covered on further. So till now this was all about nutrition. I hope आपको properly mouth से लेकर anus तक nutrition, the all processes, heterotrophic nutrition, autotrophic nutrition are understood very easily. अगर कोई भी दिक्कत है you can ask me in the comment section. I will happy to answer you all of you. If you like the video, please do like, subscribe and share, and do have comments. If you have any question regarding the nutrition aspects, do ask. I will happy to answer you. Thank you very much.